आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश अब तक की अहम खबर। राज्यसभा के मेंबर जय संतोष ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के ज़रिए तमाम रियासत के जंगलात और कुदरती खूबसूरती के बारे में तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी ज़बान में तहरीर की गई वृक्षवेदम नामी किताब के कारगुजार सदर KTR के हवाले की। इस मौके पर KTR ने कहा कि किताब में रियासत के हैरत अंगेज जंगलात और कुदरती खूबसूरती के बारे में दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस किताब से माहौलियाती मोहब्बत और लोगों में सरसब्त व शादाबी पर बेहतर तरीके से बेदारी की गई है। उन्होंने रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार और ग्रीन इंडिया चैलेंज के मेंबरों को किताब की इजराई पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में वजीर श्रीनिवास गौड़ और हुकूमत के चीफ व्हिप विनय भास्कर ने शिरकत की। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ जिला मलगू में ख्वातीन से जुड़े तमाम मसाइल के हल के लिए 49 लाख रुपए लागत से सखी मरकज की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। दरअसल वजीर ने 27.5 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा ग्रीन ब्रांड सैनिटरी नैपकिन यूनिट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट कविता MLA सितक्का, ZP के चेयरमैन के जगदीश, कबायली बहबूद के कमिश्नर के अलावा दिगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ఏ విధంగా లబ్ధి పొందవచ్చు, ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో రైతులందరూ క్షేమంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక రైతులకు సంబంధించి సంక్షేమాన్ని పెద్దపీట వేస్తూ ముందుకు పోతున్న క్రమంలో మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6000 క్లస్టర్లలో రైతు వేదికలు నిర్మాణం చేసుకున్నాం। మరి ఈ జిల్లాలో కూడా గౌరవ కలెక్టర్ గారు వివిధ శాఖల ద్వారా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, PR, R&D ద్వారా అన్ని రైతు వేదికలను సకాలంలో పూర్తి చేశారు। చాలా ఉత్సాహంగా మరి జిల్లా అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా ఉన్నారు। దానికి గౌరవ చైర్మన్ గారు, శాసనసభ్యులు ఇంకా టీం అంతా కూడా వారికి సహకరిస్తున్నారు। అందరి పేరు పేరున మరి ములుగు జిల్లాకు సంబంధించి సాగునీరు రైతులకు ఇంకా రావాల్సిన అవసరం ఉందని మనం ఇప్పటికే ఒక సమగ్రమైన రివ్యూ సమావేశం నిర్వహించుకున్నాం। మన ప్రతిపాదనలు కూడా పంపించి ఉన్నాం। ములుగు జిల్లాకు సంబంధించి घंटापुर మండలంలోని పాలెం వాగు वजीर अफजाइश व मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने मारेकपल्ली में वाकई इनकी रिहाइशगाह पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स हवाले किए। इस मौके पर तलसानी ने बताया कि जुमला 32 इस्तेफादा कुनिंदगान में 16 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर बोर्ड मेंबरान और चोकला महेश्वर रेड्डी ने वजीर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। रूपावती शानू बेगम, फातिमा, मोहम्मद समी, गौसिया बेगम, दम्माट अन्नपूर्णा, शाहदा बेगम, शिलेका हामुरा बेगम, साबिरा बेगम, हीना कौसर, महराज, शमीम बेगम, साहिरा बेगम, अख्तर सुल्ताना,
ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఆడపడుచులకు ఇచ్చేటువంటి ఒక కానుక షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి అంటే ఒక सीपीआई रियासती सेक्रेटरी नारायणा ने वाईएसआर पार्टी की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वाईएसआर जमात इनके एक बयान को लेकर गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल को लेकर बरसर इख्तिदार हुकूमत पर रिमार्क्स किए गए थे, ताहम इस गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। उन्होंने वाईएसआर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। కుక్కలను ఉపయోగించి నా పైన రకరకాలుగా మాట్లాడే ప్రయత్నిస్తున్నారు. కుక్కలపై నాకు తనంత విశ్వాసం ఉంది. నాకు మీకు నిజంగానే కుక్కలే కాపాడాలని ఉంటే వైఎస్ వివేకానందుడిని చంపేవాళ్ళ సాధ్యమయ్యేది కాదు కదా. కాబట్టి అత్యంత విశ్వాసమైనది కుక్కలు నాకు తెలుసు. కానీ నేను చెప్పింది ఏంటి, అత్యంత అట్టహాసంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఎండ్ల పట్టాలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అందరూ ఒకే సెంట్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సాంకేతిక పరిస్థితులు, చదువులు, పిల్లలు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం సౌకర్యాలు కనిపించాలి. ఒక సెంట్ అనేది మరీ స్లమ్ ఏరియాగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి దాన్ని పెంచండి అని చెప్తూ ఒక ఉపమానం చెప్పాను. సహజంగా రాజకీయ ఉపమానాలు ఉంటాయి, దాన్ని కాదని చెప్పలేరు. దాన్ని చెప్పింది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో కుక్కలకి కేటాయించిన స్థలాల కన్నా తక్కువ కేటాయిస్తే ఏం బాగుంటుంది మీకు అని చెప్పేసి చెప్పిన మాట వాస్తవమే. దాన్ని మీరు పాజిటివ్గా తీసుకొని ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు అని చెప్పేసి అనేది చెప్పాల్సింది పోయి మీరు కుక్కలు అన్నారా అని చెప్పేసి నా పైన దాడులు చేస్తారు. ఇట్లాంటి దాడులు పెద్ద ఉపయోగపడదు, ఎదురు దడ్డపు ఒకటి కాదు. సరే, పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర గారు నాకు బాగా పరిచయం ఉన్నవారే. చంద్రబాబు నాయుడు, పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి మేము సమకాలీకులమే. అయితే సడన్గా ఆయన ఏమన్నారంటే నారాయణ గారు కూడా టీడీపీకి చంద్రబాబుకి అమ్మేశాడు పార్టీ అంటున్నారు. అంటే రాజకీయాలు మాట్లాడండి, రాజకీయ విమర్శించి నాకే అభ్యంతరంలా. బ్లాక్మెయిల్ చేయడం ఏంటిది? ఇది రాజశేఖర రెడ్డి మేము సపోర్ట్ చేసాం. అప్పుడు बीजेपी कायद रामचंद्र राव ने टीआरएस हुकूमत से सवाल किया कि पहले किसान बिलों की हिमायत की थी, ताहम किसानों के एहतजाज के बाद अपने मौक़िफ़ बदलकर अब किसानों की तायद कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में मनमानी हुकूमत रवा दवा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत किसी भी इंतखाबात से कबल मुतअद्दिद वादे करती है, ताहम इस पर अमल आवरी नहीं होती। वज़ीर आला केसीआर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते रहते हैं। केसीआर सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के मकसद से बयानबाजी करते हैं। चंद्रशेखर राव जी कल जो किसानों के बारे में जो निर्णय लिए कि जो खरीदारी है, फसल की खरीदारी मार्केट में नहीं बाहर भी बेच सकते हैं, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्ट लेके आई है उनके थोड़े सपोर्ट में बात की है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि पहले इन्होंने उसको विरोध क्यों किया, अब इसको क्यों सपोर्ट कर रहे। अब पहले किस मामले में किस मुद्दे पर विरोध किए थे, अब किस मुद्दे पर उनको सपोर्ट कर रहे। यानी कि मुख्यमंत्री जी जो है कभी भी जो मन में चाहे वो कर देते हैं, अपोज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं किसी को नहीं मालूम। आज उनके जो निर्णय के कारण पहले जो बताए थे किसानों को कि तुम यही फसल डालो जो हम बोलेंगे, आज क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा दिल कुछ भी डालो बोल रहे हैं। अब फसल का सीजन भी हो गया, फसल डाल भी दिए आपके अनुसार, अब लॉस किसको हुआ, किसानों को हुआ। तो आज जो भी निर्णय जो चंद्रशेखर राव जी ले रहे हैं, टीआरएस पार्टी ले रही है, उससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है, और मोदी जी जो निर्णय लिए किसानों को वहाँ फायदा पहुंच रहा है। आज मोदी जी जो निर्णय लिए हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए किसानों तक केसीआर जो है उसको रोकते रही है, और आज भी रोक रही है। ये पूरे बयानबाजी में चल रही है उनकी पूरी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी ये हमारे जो एमएलसी इलेक्शन जो चलने वाली है, अभी आने वाले हैं 2 जगह पर, उसके लिए क्या कर रही है, ये जो 50,000 जो एक एम्प्लॉयमेंट 50,000 नौकरी ऐलान करने वाली है, और पीआरसी भी जो है सरकारी मुलाजिम को ऐलान करने वाली है। हम पूछना चाहते हैं कि इतने साल से आप क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने हुकूमत से एलआरएस को मनसूख करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एलआरएस की अमल आवरी से गरीब अवाम को मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी एलआरएस को मनसूख करने का मुतालबा किया। वैसे तो बहुत खुशी की बात है,
पर और एक बात क्या बोलते हो, LRS का चल रहा अभी। अब LRS का डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लिया अभी, वो LRS का डिसीजन मैं बोल रहा हूँ LRS को कैंसिल कर दो। कह के बोलो तो पूरा एक जमाने पे भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख को प्लाट खरीदे, 2 लाख 3 लाख 4 का जो प्लाट खरीदे गरीब लोग बोले तो कौन है, फ्रूट वाला समझो या जो वर्कर समझो, जो मिडिल क्लास फैमिली समझो, एक ऑटो रिक्शा वाला समझो, कोई भी जो कम रेट में जो प्लाट खरीद के 2-3-4 लाख में प्लाट खरीद के उन्हें आज LRS बनना बोले तो फिर 2 लाख बनना पड़ रहा। इसलिए LRS कैंसल करके रेगुलराइज में कम रेट में, कम हो तो 5,000 10,000 के अंदर जो प्लाट है, प्लाट समझो या घर समझो, उसको रेगुलराइज करने के लिए कम रेट में 10,000 अंदर ही 5-10,000 अंदर ही एक रेट गवर्नमेंट फिक्स करके अभी गरीबों को जो प्लाटा लिए हर एक की क्या रहता, एक उनका मेहनत में से एक प्लाट खरीदना, एक अच्छा छोटा घर बन लेना, एक अच्छा परिवार बना लेना बोल के हर एक आदमी को रहता। मगर ऐसे टाइम पे यही पब्लिक को अभी ये LRS के सिस्टम में मुश्किल हो रहा। उतना 2 लाख बोलो तो एक मिडिल क्लास फैमिली गरीब होगा 2-3 लाख में घर भी बन ले सकते ना। अभी तो 2 लाख बन के फिर 2-3 लाख में घर बन लेना बोलते नहीं होता वैसा। इसलिए KCR साहब का मेरा दरख्वास्त है मीडिया के सामने से फौरन LRS कैंसिल करके 5,000 10,000 के अंदर ही वो प्लाट वालों को रेगुलराइज करो कम रेट में, वैसे घर भी जो घर बन रहे वो लोगों को भी वही रेट में करो। ये अगर ये काम करे तो पब्लिक खुश हो जाएंगे, आपको याद रख लेंगे। ये मैं तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण कोरोना से मुस्बित पाए गए। चरण जो साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीव के फर्जंद हैं, इस वबा से मुतासिर होने की सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए तौसीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने घर पर खुद को अलग थलग कर लिया है। जिला मेट्रिक के गटकेसर मंडल में बीजेपी पार्टी कायदीन की क़यादत में LRS को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए रियल्टर्स ने ORR के कौमी शोहरा पर एहतजाजी धरना देने का ऐलान पर गटकेसर पुलिस ने ORR कौमी शोहरा के करीब एहतजाजी रिटेलर्स और बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार शुदगान में स्टेट रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर N प्रवीण कुमार शामिल हैं। इस मौके पर TTDP के सदर L रामन्ना ने गटकेसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजी रिटेलर्स की हिमायत का ऐलान किया और पुलिस स्टेशन के रूबरू बैठकर LRS पर हुकूमत के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए LRS को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया।
जिला मेरचेर के जवाहर नगर कॉरपोरेशन की हदूद में वाक़ई डंपिंग यार्ड पर खौफनाक सड़क हादसा खौफ व हिरास का बाइस बन रहे हैं। एक तेज रफ्तार कार और ऑटो उलट गए। इसी तरह अब तक मुख्तलिफ करीब 15 हादसा हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कोहर की चादर की वजह से हादसा रोनुमा हो रहे हैं। इसके अलावा डंपिंग यार्ड से निकलने वाली केमिकल अशिया का सड़क पर बहाव भी हादसात की वजह माना जा रहा है। ताहम अब तक इस पर काबू पाने के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं और न ही इस जानी मुतल्लिका ओहदेदारों ने कोई कार्रवाई की है। मुकामी अवाम ने फौरी हादसात पर काबू पाने के लिए इकदाम करने की अपील की है। सुबह 5 बजे अब्बा जब जा रहे थे ना, वहाँ एक औरत गिरी। परसों बोला ना मैं बकरे की नस्ल का पल्सर गाड़ी यहाँ गिरा तो गाड़ियों को रोक मार। जिला पदुटोरू में तेलुगु देशम के तर्जुमान नंदम के कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जा रहा है कि अराजी पट्टा जात की तकसीम के प्रोग्राम के दरमियान चंद नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े नंदम सुप्रिया पर तेज धारी हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। मकतूल नंदम हाल ही में गैर अखलाकी सरगर्मियों के सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरसर इक़्तिदार हुकूमत के हामियों पर तनकीद की थी। प्रोग्राम के बीच नंदम पर हमला करने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन धर्मगौड़ा ने खुदकुशी कर ली। चकमागलोर में पुलिस को धर्मगौड़ा की लाश रेलवे ट्रैक पर से दस्तयाब हुई है। पुलिस ने चाय मौके से एक खुदकश नोट भी बरामद किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने शुबा किया है कि धर्मगौड़ा ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर खुदकुशी की है। धर्मगौड़ा कल शाम अपनी कार में तन्हा घर से रवाना हुए थे, ताहम रात को वापस नहीं आए, जिस पर इनके कम्बे के अफराद ने पुलिस को इस बात की इतला दी। पुलिस को मंगल की सुबह चकमागलोर रेलवे ट्रैक पर इसकी लाश मिली। धर्मगौड़ा जेडीएस से बहैसियत एमएल से मुंतखब हुए साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा ने डिप्टी चेयरमैन धर्मगौड़ा की खुदकुशी पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जेडीएस पार्टी एक अच्छा लीडर खो चुकी है, जबकि इस वक्त पार्टी को सख्त मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना में नया कोरोना वायरस दाखिल हो गया है। सीसीएमबी के साइंसदानों ने वरंगल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को बरतानिया में शुरू होने वाले नए शक्ल के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की निशानदेही की है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने भी इस मामले की तस्दीक की है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इसका ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक ये शख्स जो नई शक्ल के कोरोना का शिकार हुआ है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बरतानिया से वरंगल पहुंचा था और 24 दिसंबर को इसका टेस्ट किया गया और कोरोना मुस्बित होने की वजह से जेनूम के नमूने सीसीएमबी को भेजे गए थे। सीसीएमबी के साइंसदानों ने यह इंकशाफ किया कि यह शख्स बरतानिया में तेजी से फैलने वाले नई शक्ल के कोरोना से मुतासिर हुआ है। मालूम हुआ है कि इस शख्स के नमूने पुणे में वायरोलॉजी लैब को भेजे गए। इसकी मां भी कोरोना से मुतासिर हुई है, ताहम ये आम शक्ल का वायरस है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।